نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے لیز کو ہم سب کا فیوریٹ بنایا، شکریہ۔ لیز، لائف نیڈز فلیور۔ دھمکیاں، بڑکیں اور جنگ کے سائے پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو فوری اقدام کے لیے خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی جو سنگین غلطی ہوگی۔ تحقیقات کے بغیر پلوامہ حملے کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے۔ داخلی مقاصد کے تحت بیانات سے بھارت خطے کا ماحول کشیدہ بنا رہا ہے۔ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم نہ تھم سکے۔ قابض بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 4 کشمیریوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ دوسری جانب بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 35A کی سماعت حریت قیادت نے 20 اور 21 فروری کو وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی۔ وزیراعظم عمران خان کا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ پلوامہ ڈرامے سے پیدا ہونے والی صورتحال، بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو اور سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان اجلاس میں زیر غور آئے گا۔ پانم مسلحتی عمل سمیت خزانہ اور دفاع و خارجہ امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اجلاس رواں ہفتے طلب کیے جانے کا امکان۔ عالمی عدالت انصاف میں بھارتی دہشت گرد کلبھوشن جادیو کیس کی سماعت۔ بھارت نے کلبھوشن کی ریٹائرمنٹ کے ثبوت فراہم نہیں کیے۔ مبارک حسین پٹیل کے نام سے جاری پاسپورٹ پر تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ بھارتی دلائل پر پاکستان آج شواہد پیش کرے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کہتے ہیں پاکستان افغان امن کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ افغان امن عمل میں سعودی عرب کا بھی اہم کردار ہے۔ دوحہ میں مذاکرات کے دوسرے دور میں طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کر ترغیب دینے اور سیز فائر پر مشتمل 2 نکات پر زور دیں گے۔ سعودی ولی عہد کا تاریخی اور کامیاب دورہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کے درمیان روابط کے فروغ پر اظہار اطمینان۔ سعودی قیادت کی علاقائی امن اور سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی تعریف۔ دونوں ممالک کا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اقدامات جاری رکھنے کا اعادہ۔ نواز شریف کے 5 میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر پی آئی سی کی تجاویز پر سوال اٹھا دیے۔ جناح اسپتال کے میڈیکل بورڈ نے سابق وزیر اعظم کی انجیوگرافی کی تجویز دی۔ پی آئی سی نے انجیوگرافی ٹیسٹ سے گریز کیا۔ نئے بورڈ کی سفارشات محکمہ داخلہ کو بھجوا دی گئی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس نظر ثانی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سابق صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو، فریال تالپور اور دیگر کی نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ دیگر اہم مقدمات بھی زیر سماعت آئیں گے۔ خورشید شاہ کی لاہور میں شہباز شریف کی خیرآمد، رہائی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پارلیمنٹ میں حکومتی پالیسیز کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پی ایس پی رہنما جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی جانب سے واقعے کی مذمت۔ آصف حسنین کا کہنا ہے کہ شہر کو ایک بار پھر را کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। जख्मियों में डॉक्टर और टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। जोहराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस वर्दी में शहरियों को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब खोखरा पार से 4 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ लिए गए। के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मानसहरा में लैंड स्लाइडिंग से कागान, बटग्राम और बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप पर 16 अमरीकी रियासतों ने हट जाने का दावा दायर कर दिया। सदर पर दावा मुल्क में हंगामी हालत के नफाज के ऐलान को बुनियाद बनाकर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 फरवरी को मैक्सिको की सरहद के साथ दीवार की तामीर के लिए फंड हासिल करने के लिए हंगामी हालत नाफिज की। यंग डॉक्टर्स सिंध में काम पर वापस आए तो पंजाब में हड़ताल के लिए कमर कस ली। वाईडीए पंजाब का 8 से सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल का ऐलान। 3 दिन तक मुतालिबात ना माने गए तो पिम्स को बंद कर देंगे। फेडरल डॉक्टर्स एसोसिएशन की धमकी। तो शहर फन के अमीर भी है, अगर है आजाद नफरतों से तो चाहतों के असीर भी। उर्दू जुबान के मुमताज शायर साहब अख्तर को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। उनकी लिखी नज्म, कते, गीत, मिली नगमे, दोहे और गजलें आज भी बेमिसाल। टेक्नोलॉजी ने कारों को इंसानों का गुलाम बना दिया। मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला ने मोबाइल ऐप से कंट्रोल होने वाली कार मुतारिफ करा दी। कार में खसूसी समन फीचर की मदद से गाड़ी को आगे पीछे, दाएं बाएं कहीं भी मोड़ा जा सकता है। किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दाम के लिए खत लिखा है। खत में कहा गया है कि भारत तहकीकात के बगैर पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर रहा है। हमलावर कश्मीरी था लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारत तहकीकात के बगैर पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। भारत की धमकियां, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। धमकियां, भड़कें और जंग के साए। पाक भारत हालिया कशीदगी के खात्मे के लिए वजीर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दामात के लिए खत लिख दिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खत में कहा है कि भारत तहकीकात के बगैर पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। भारत दाखिली मकासद के तहत पाकिस्तान दुश्मन बयानात से खित्ते का माहौल कशीदा बना रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने खत में कहा, भारत के मुताबिक हमला आवर कश्मीरी था लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारत ने सिंध तास मुआहिदा खत्म करने की धमकी दी जो संगीन गलती होगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम न थम सके। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले 4 कश्मीरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 35A की समाअत की। हुर्रियत क़यादत ने 20 और 21 फरवरी को वादी में शटडाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। भारतीय जुल्म और सितम के बावजूद पूरी मकबूजा वादी भारत से आजादी के नारों से गूंज रही है।
उधर भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी तेज कर दी है। भारतीय औची हथकंडों का जवाब देने की हिकमत अमली के लिए वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला किया है। जराए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास इसी हफ्ते तलब किया जाएगा। कुलभूषण जाधव केस पर भी बात होगी। इजलास में मुल्क की मजबूरी सिक्योरिटी सूरत हाल और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान समेत दीगर अहम उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम तराशी तेज करती है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अवैध से भारतीय औची हथकंडों का मौसर जवाब देने के लिए वज़ीर इमरान खान ने फैसला किया है कि रवां हफ्ते ही जो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया जाएगा और इसी हफ्ते ही जिसमें जो है वफाकी वुज़रा, तफीना सर्विसेज चीफ और उसके अलावा दफ्तर कादे और काम जो है शिरकत करेंगे। और ज़राए ने बताया है कि जो इजलास तलब करने का मकसद यही है कि इसमें 2 से 3 एजेंडे जो इजलास में रखे गए हैं। सबसे पहला, जो पुलवामा के खिलाफ भारत ने जो मन गढ़ंत इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए बेबुनियाद, उसका पाकिस्तान जो है वो मौसर जवाब देगा और पाकिस्तान भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद भी कर चुका है और अब पाकिस्तानी फैसला कर रहा है कि आलमी सतह पर भी भारत को जो है वो इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरा, जो कुलभूषण जाधव जो भारतीय जासूस है जिसका केस इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ में चल रहा है, उस पर दफ्तर खाते काम जो है वो ब्रीफिंग देंगे और वज़ीर आज़म को और अटॉर्नी जनरल के बीच इजलास में शिरकत मुतवक्किल है वो केस के बारे से बताएंगे। और जो बरतानवी की जो इदारे की जो रिपोर्ट थी जिसमें वाज़ेह तौर पर था कि कुलभूषण का पासपोर्ट दुरुस्त था, उस वाले पाकिस्तान केस चूंकि मजबूत हो चुका है तो पाकिस्तान अभी चाह रहा है कि आलमी सतह पर भारत को जो है वो जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है उनको आलमी सतह पर भारत को तनहा किया जाए। और सेकेंडली इस इजलास में जो है वो मुल्क की मजबूत सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात होगी और अफगान हुकूमती अमल समेत जो है खित्ते की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी। उसके अलावा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान था उस वाले से भी जो है इजलास में गुफ्तगू होगी। तो रवां हफ्ते ये इजलास तलब किया जाएगा जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ समेत जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सरबराहान है खुफिया इदारों के वो भी इजलास में शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय वकला ने पाकिस्तान में गिरफ्तार होने वाले भारतीय दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण जाधव केस पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। भारत अपने जासूस की सफाई में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान आज अदालत को हकाइक से आगाह करेगा। कल भारतीय वकला पाकिस्तानी दलाइल पर बहस करेंगे। 21 फरवरी को पाकिस्तानी भारतीय दलाइल पर जवाब देगा। बरतानवी फोरेंसिक इदारे ने इंडियन जासूस का पासपोर्ट असली करार दे दिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू ने सरदार शिराज से। जी, आप तफसीलात से कीजिएगा। कुलभूषण यादव का केस आज दूसरे रोज जो है उसकी समाअत होगी। कल भारत में अपने जो केस उसने ले गया था जिला में उस पर उसने दलाइल दिए थे जिसके जवाब में आज पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने बरतानिया के एक फोरेंसिक लैब है उससे रब्ता किया था और उस भारत का जो कुलभूषण यादव को जो पासपोर्ट जारी किया गया था वो चेक करवाया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई है कि वो पासपोर्ट जो है वो असल है और भारत की हुकूमत ने ही उसे जारी किया था। इस पासपोर्ट पे कुलभूषण यादव ने 17 बार जो है वो सफर किया है, लेकिन भारत अभी तक कोई सबूत ये फराहम नहीं कर सका कि उसने ये पासपोर्ट उसे किस लिए जारी किया था, जबकि उसका जो नाम है वो कुलभूषण यादव है, जबकि हुसैन मुबारक पटेल के नाम से उसे पासपोर्ट जारी किया गया जिसपे उसने भारत से 17 मरतबा मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं। तो इस हवाले से जो है भारत कोई सलीम वक्त जवाब नहीं दे सकता। फिर भारत का ये मौक़िफ़ है कि कुलभूषण यादव जो है वो एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि वो रिटायर्ड है तो उसकी कोई पेंशन होगी, कोई पेंशन की कापी होगी, कोई रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पेश किए जाएं, तो वो भी भारत अभी तक पेश नहीं कर सका है। इस हवाले से आज पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से फिर से वो रखेगा, जिसके जवाब में भारत कल जो है दोबारा जो है वो अपना वो करे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलमी अदालत इंसाफ में इस वक्त कुलभूषण यादव का केस है। पाकिस्तान की जानिब से फोरेंसिक एविडेंस भी दिया गया है कि मुबारक हुसैन पटेल को जो भारतीय पासपोर्ट इशू किया गया था वो असली था। आप समझते हैं कि इसका भारत के खिलाफ असर जाएगा आलमी अदालत इंसाफ में? देखिए, ये तो फैसला आलमी अदालत ही करेगी ना कि एविडेंस कितना क्रेडिबल है, लेकिन अब तक जो हमारे सामने बातें आई हैं मीडिया के जरिए उसमें तो यही लगता है
کہ ہندوستان نے کوئی نیا ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا ہے. بیانات ہیں جو ماضی میں بھی دیے تھے اور وہی اسی قسم کے بیانات دیے ہیں, لیکن ہر بیان کے لیے کورٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی سبسٹینشیٹ کیا جائے, ثابت کیا جائے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ بہت عرصہ ہوئے یہ نوکری چھوڑ چکا تھا, اس کے ریٹائرمنٹ یہ تھی اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاسپورٹ جو غلط نام سے اس کو ایشو ہوا, اس کی وجوہات کیا تھی, کس طرح وہ پاسپورٹ حاصل کیا گیا, یہ وہ سوالات ہیں جن پہ پاکستان نے پہلے بھی اعتراض کیے تھے. اب بھی آج جب وہ اپنا جواب داخل کریں گے یہی ایشوز وہ وہاں کھڑے کریں گے اور پھر دیکھنا ہے کہ عدالت جو ہے دونوں طرف کی باتیں سننے کے بعد کس فیصلے پہ پہنچتی ہے اور کس قسم کی ہدایات جو ہے وہ ہندوستان یا پاکستان کو جاری کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری آپ کا.